Students, today I'll ask some questions from you all, and those who know the answer will drop their answers in the chat box, and those to whom I'll address himself or herself, just unmute yourself and give the answers in the full sentence. Yes. So students, how do we satisfy our needs? How do we satisfy our needs? Anyone? Abhilasha, can you please try? How do we satisfy our needs? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We satisfy our needs by purchasing goods. Very good, Abhilasha. We satisfy our needs by purchasing goods. Next is what we have to give in exchange of goods and services. जब हम मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उसके एक्सचेंज में हम क्या देते हैं? एनीवन? दिव्यांशी? Abhishek? Very good, Abhilasha. We have to give money in exchange of goods and services. When we buy or sell goods and services with a motive of earning profit, that activity is known as. When we buy or sell goods and services with a motive of earning profit, that activity is known as. Okay, I'll tell you. So, whenever we purchase or sell goods with the process of motive earning, that activity is called as business. So, students, today we will discuss in detail about the topic business. As here you can see in the slide, there is a picture where a person holds a newspaper and it contains the word name business. Okay, so students, do tell me from where we purchase goods. सामान हम कहाँ से खरीदते हैं? Anyone? Yes, ma'am. Yes, we purchase goods from market. Very good. We used to purchase goods from the market. Next question. What is the process of exchange of goods and services is called? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Okay, so the process of exchanging of goods and services with the medium of exchange of money is called as business. So again here on your screen you can see a picture where two of the male persons are selling a tea, and two of the persons where a lady is standing and a male is standing who is purchasing. So here what we will see in this picture, that one person is giving the things and the other person is receiving that things in with the medium of exchange of money. मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कहीं पे भी जाते हैं और आप किसी को सामान देते हैं तो उसके बदले में वो आपको उसी की वैल्यू का जो भी आप मिनिमम कॉस्ट आते हैं वो उस चीज आपको देता है. ओके, सो हियर एक्टिविटीज में प्रॉपर्ली इंक्लूड या इंडल्ज रहती है. नेक्स्ट आता है बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं, चाहे वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है. ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि जहाँ पे हमको प्रॉफिट की उम्मीद नहीं होगी वहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं. There are various forms of a business such as limited liability company, a sole proprietorship, a corporation and a partnership. So जो बिजनेस है, बिजनेस आप कई तरीके के कर सकते हैं जिसके से मेनली आपके चार बिजनेसेस चलते हैं, जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया जिसका मतलब होता है वन मैन ओनरशिप. मतलब कि इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो किसी एक ही पर्सन के पास रहेगा, वो किसी से ना ही वो शेयर करेगा और ना ही वो अपने ना प्रॉफिट को शेयर करेगा ना लॉस को शेयर करेगा. इसी तरह आपका नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में क्या होता है, हम दो या दो से ज्यादा लोगों को
आते हैं और एक डिसाइडिंग रेशियो में डिसाइड करते हैं कि अगर हमें उस बिजनेस से लॉस होगा तो हम कैसे सफर करेंगे और किस रेशियो में बांटेंगे अपनी कैपिटल में, और अगर हमें प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को भी हम किस मार्जिन और बेसिस पे अपने अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Business can range from small operations operating in one industry to large operations operating in many. होता है वो एक छोटे ऑपरेशन से लेके एक लार्ज ऑपरेशंस तक डील कर सकता है. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ज्यादातर एम्प्लॉयज होते हैं, ज्यादा वर्कर्स होते हैं, सिर्फ वही लीड कर सकते हैं. आप चाहते हैं तो एक छोटा बिजनेस भी खोल के रख सकते हैं. अगर कोई बंदा अपने घर पे डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोल के बैठा हुआ है तो हम उसको भी बिजनेसमैन कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही बेसिस पे अपना एक बिजनेस अपने लेवल पे खड़ा करके उसने रखा है. जरूरी नहीं कि जब तक आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर वर्क ना करो या वो आपका कंपनी खुद का ना हो तब तक आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते. नाउ आते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. The business objective is what makes the business go on and conduct its activities in a long run. It is the reason why the business is. अब बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वही होता है जो ये आपको पक्का करके रखता है कि आपका बिजनेस एक शॉर्ट टर्म पीरियड तक ही सिर्फ चलेगा या हम इसको एक लॉन्ग, मतलब क्या था, तो बिजनेस सिर्फ उनका एक मोटिव रहता था कि हमको सिर्फ 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 लाभार्जन करना है. लाभार्जन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग, कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को बेचो और सारा प्रॉफिट रख लो. लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज customer satisfaction, as this is what results in most profits. If the customer is satisfied, business access. So modern concepts के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है उसकी कस्टमर का सेटिस्फैक्शन. उसका कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है कि कंज्यूमर इज नोन एज द किंग ऑफ द मार्केट. अगर हमारा कस्टमर ही हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा या हमारी डीलिंग से सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कभी हमारे पास दोबारा लौट के आएगा ही नहीं, और जब दोबारा आएगा नहीं तो हम कहाँ से और प्रॉफिट कमा पाएंगे. इसलिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को छोड़ के हम अभी मेन कॉन्सेप्ट के थ्रू अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. प्रॉफिट मोटिव हमारा सेकेंडरी प्रायोरिटी पे आ जाता है. So again here you are seeing a picture on your screen where it shows कि एक जो आपका मिडिल पर्सन है वो हायर लेवल पे है, एक साइड पे चल रहा है, तो दूसरा तीसरा भी बंदा साइड पे चल रहा है. तो ये क्या हो रहा है? एक अपने लेवल पे जा चुका है, अपने बिजनेस की गुडविल को बना चुका है. बाकी जो दूसरा और तीसरा है वो क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्टेबल करने की मार्केट में. So ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट डू यू सी इन दिस पिक? यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे इस क्वेश्चन के नीचे. ये आपको क्या दिख रहा है? एनीवन कैन आंसर. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक? It's a cell phone. वेरी गुड. सो देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ सेल फोन. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोबाइल फोन? एक मोबाइल फोन, एक सेल फोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एनीवन? Nancy, oh sorry, the Vanshi, Abhilasha. यस मैम, मोबाइल फोन के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं. वेरी गुड. सो कैरेक्टरिस्टिक्स एक मोबाइल फोन की क्या होती है कि आप उनसे अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, आप अपनी स्टडीज कर सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी का सीन ले लीजिए कि लाइक कोविड की सिचुएशन की वजह से हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस फुल्ली ऑफ हो गए. तो क्या हुआ ऐसी सिचुएशन में? हमने मोबाइल फोन्स के ही थ्रू ऑनलाइन क्लासेस जनरेट की और आपकी पढ़ाई की को कहीं से भी हिंड्रेंस नहीं होने दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया. इन द सेम मैनर बिजनेस की भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अगर हम हिंदी में बताएं तो क्या होगा? विशेषताएं. सो बिजनेस हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक the following are the important characteristics of a business: economic activity, buying and selling, continuous process, profit motive.
risk and uncertainties, creative and dynamic, customer satisfaction and social activity. So we will discuss in detail about all these activities. पहले ही बात आती है economic activity की. So economic activity is an activity of production and distribution of goods and services. It provides employment opportunities to different sectors like banking, insurance, transport, industries, trade, etc. So business क्या है? Business basically एक economic activity है जो कि goods and services को produce करती है और distribute करती है. इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है लोगों के लिए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में हो, चाहे वो ट्रेड सेक्टर में हो. नेक्स्ट आपका आता है बाइंग एंड सेलिंग. अब हमारी जो मीनिंग ऑफ बिजनेस है वो बेसिकली इसी दो टर्म पे ही डिपेंड ही करती है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. सो ये आपको नॉर्मली इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो आपका बिजनेस मेनली डील करता है जिन दो टर्म्स पे, वो आपके बाय एंड सेल होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो बिजनेस is not a single time activity. It is a continuous process of production and distribution of goods and services. बिजनेस क्या है? कोई एक सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है कि बस एक बार हमने बल्क क्वांटिटी में अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, फिर वो जब स्टॉक पूरा खत्म हो गया, फिर उसके बाद हम चुपचाप बैठ गए क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया, तो हमने घर पे बैठ के खाया, और फिर जब लगा कि अब फिर से सारा प्रॉफिट खत्म हो रहा या जितने भी हमारे पास मनी आया सब खत्म हो रहा, तो अब फिर से प्रोड्यूस. ऐसा नहीं होता है. बिजनेस में हम रेगुलर डेज पे एक्टिविटीज को अपनी जनरेट रखते ही रखते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हमारा कभी भी रुक ही है. हमारे प्रोडक्ट्स भी लगातार मैन्युफैक्चर होते ही रहते हैं, चाहे हम उसको कितने भी बल्क क्वांटिटी में क्यों ना कर ले. लेकिन प्रोडक्शन भी उस बेसिस पे डिपेंड करता है जब हम मान लेते हैं कि हाँ, इस प्रोडक्ट का डिमांड जो मार्केट में है वो एक बल्क क्वांटिटी में है, क्योंकि अगर हम कस्टमर की तरफ से ये देख रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई प्रॉपर वे रिस्पांस नहीं है इस प्रोडक्ट को लेके, तो हम अपने प्रोडक्शन को वहां पे थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि हमें तब ये लगता है कि अगर हमने बल्क क्वांटिटी में उस चीज को प्रोड्यूस कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट आपका आता है प्रॉफिट मोटिव of a business is usually to obtain the highest possible level of profit through the production and sale of goods and services. किसी भी बिजनेस का जो प्राइमरी गोल होता है वो हमेशा यही होता है कि अगर हमने 1 लाख रुपीस किसी में लगाए हैं तो हमारी मोस्टली कोशिश यही होती है कि बहुत नहीं ज्यादा तो 50,000 प्लस तो हमें एटलीस्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो हमारी लागत में फिर से लग जाएगा. तो इसलिए जो मेन ऑब्जेक्टिव आप कह लीजिए किसी भी फर्म का, वो एक प्रॉफिट मोटिव अर्न करना होता ही होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज की. अब जैसे कि एक किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसी तरह कभी कभी क्या होता है कि हम रिस्क को भी एक एज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं. कहते हैं ना, अगर आपने सुना होगा आपके घर में अगर किसी ने बिजनेस किया होगा कि रिस्क, बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टेबल करने से पहले ही हमें नहीं पता चल जाता है कि हमको उसमें प्रॉफिट ही मिलेगा. मे बी हो सकता है हम जितना हमने सोच रखा है कस्टमर उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाए हमारे प्रोडक्ट से, और जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारा सामान नहीं बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग की जगह डाउनफॉल ही क्रिएट होगा, हमारे बिजनेस में क्राइसिस ही आएंगी. तो रिस्क और अनसर्टेनिटीज एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की. Risk is defined as the effect of uncertainty arising on the objectives of the business. Risk is associated with every business. अगर बिजनेस है तो रिस्क जरूर है साथ में. कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि नहीं हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिना रिस्क के कर रहे हैं. सिक्स्थ पॉइंट आपका है क्रिएटिव एंड डायनामिक. बिजनेस को हमेशा एक क्रिएटिव मोड का होना चाहिए. मॉडर्न बिजनेस इज क्रिएटिव एंड डायनामिक इन नेचर. व्हाट डज द टर्म वर्ड
होता है कि समय के साथ खुद में चेंजेस करते रहना। जैसे कि मैंने आपको अभी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने क्या कहा था कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम क्या मान के चलते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग करना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमको उसके जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो भी पूरी के पूरा होना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट आपका आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। The phase of business has changed from traditional concept to modern concept. Nowadays, business adopts a consumer-oriented approach. Customer satisfaction is the ultimate aim of all economic activities. जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ यही चीज कि पहले का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, आज का भी मेजर ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग, लेकिन अभी हमारा क्या हो गया, मेजर ऑब्जेक्टिव शिफ्ट होके सेकंड प्रायोरिटी आ गया। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल कहाँ पे आता है कि हमारा कस्टमर हमसे फुल्ली सेटिस्फाई हो। अब आप नीचे अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देयर इज अ पिक्चर वेयर इट कंटेन्स कि क्या क्या होना चाहिए कस्टमर में। लॉयल्टी लेवल होनी चाहिए, उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट को लेके ट्रस्ट होना चाहिए। पार्टनरशिप अगर करना चाहे तो वो करने के लिए हम अलाउ कर सकते हैं, अगर हमारे बिजनेस में हो सकती हैं चीजें। सेटिस्फैक्शन लेवल उसका बहुत हाई होना चाहिए, उसको प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, एंड द लास्ट वन इज कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड द एट्थ वन इज सोशल एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो हमारा एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बोथ बिजनेस एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। मॉडर्न बिजनेस रन्स इन द एरा ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम में जो हमारा बिजनेस है वो सोशल एक्टिविटी के दौर में रन कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप देख रहे होंगे पहले लोग क्या करते थे, होल्डिंग्स लगवाते थे, बैनर्स लगवाते थे, वो जो पैम्पलेट्स होते हैं वो घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आजकल इजीएस्ट वे ऑफ फॉर्म क्या है, लोग सिर्फ एक इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपना पेज बना लिया, उस पे फोटोग्राफ्स अपलोड कर दी, फेसबुक पे अपना एक अपने जो भी पेज है उसको क्रिएट कर लिया, फोटोज अपलोड कर दी, और लोगों ने वहीं से कलेक्शंस को चेकआउट कर लिया, देख लिया। अभी तो बेसिकली आप चाहे किसी भी मॉल की बात कर लीजिए, किसी लाइक फॉर एग्जांपल वी मार्ट ले लेते हैं, वी मार्ट का भी खुद का एक ऑफिशियल ऐप है। आप चाहिए तो घर बैठे अपनी सारी शॉपिंग का जितना भी है सब प्रोडक्ट्स वहीं से देख सकते हैं और ले सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस सिर्फ एक नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस एक सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अब हो चुकी है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू बिजनेस को एक्सप्लोर करने में, उसकी ग्रोथ करने में लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है आराम से। So students, here we come to the end of the topics what we shall decided to discuss in detail about all the. Now I am going to ask some few questions from you all related to the previous topics which we have studied. So those who know the answers, just drop their answers in the chat box, and those to whom I'll address, just unmute yourself and give the answers in the full sentences. So my first question is, define the concept of business. What do, or you can say, what do you understand by the term business? Business word से आप क्या समझते हैं? Anyone? Anshi, anyone? Abhishek? Okay, so I'll tell you कि the term business means business is an economic activity where we use to purchase and sell goods with the motive of earning profit. बिजनेस क्या है, बिजनेस आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं एक प्रॉफिट अर्निंग मोटिव को अपने दिमाग में रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अभी मैंने आपको 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस बताई, उनमें से किसी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को आप बताइए। एनीवन? Yes, very good, Abhilasha. So the 2 characteristics of business are economic activity and social economic activity, or you can take another activity as it is a risk and uncertainties, creative and dynamic, profit motive.
So you can write any of the two major characteristics of business in detail. As a profit motive, because each business is started with a motive of earning profit, and according to the modern concept, we used to think that business depends on the customer satisfaction mainly. Next, we come up with the what is the main objective of a modern business. एक modern business का main objective क्या होता है? So, according to the modern concept, the main objective of a business is customer satisfaction, because customer is the king of the market. So it is basically important that our customer should be fully satisfied with our service, with the quality of the goods and services which we produce to them. So students, here is the summary of all the three answers. You can just took a screenshot of the summary and just note it down in your notebook afterwards the class has been ended. Or you can just write it down nowwards as per your convenience. Either took the screenshot or just note it down in your notebook. Okay, so everybody is done? Okay, so let's come up with the homework part. So your first question is, define all the forms of business organization. Means आपको business organization के सारे forms के बारे में बताना है. मैंने आपको बताया कि business आप कितने तरीकों से कर सकते हैं. Mainly four forms of business organization है, जिसमें आपका sole proprietorship, partnership, कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन आता है. नेक्स्ट आपका होमवर्क है, प्रिपेयर अ 3D मॉडल ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जब आप पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका होमवर्क है, प्रिपेयर अ 3D मॉडल ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जब आप पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करके अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, उसके बाद आपको उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सारे फॉर्म्स का एक 3D मॉडल प्रिपेयर करना है. So here I am winding up with my class. Thank you students. Thank you class.